Hey guys, welcome back to another video, and today I'm gonna start with lesson 5 of HSK 4, and I also have to do a mock test of maths chapter sets and inequalities. So I have one app on my phone already, so there are high chances I won't be able to record the math part, but then I'll make sure I download that app in my tab so that I can solve the mock test and shoot and film it as well. So yeah, for now that's all I'm gonna do. It is right now exactly 6 p.m. and with this, let us get started. So first of all, I started with the basics, that is the grammar. So grammar wala part was, as I said, started getting difficult as we jump onto the new chapters. So yeah, first I did the very first grammar part, and uske baad usse related I just made some differentiation wali notes because it is easy to understand the differentiation between the words when I am reading, and when I write it then and there itself, तो याद भी रह जाता है. So yeah, I did the first two grammar parts, and once that was done, so once the writing part, like the grammar structure part was done, I was writing some example sentences related to that. So mostly I do this first. I do the words, vocabulary का पूरा meaning and stuff, and if there is structure then I understand and learn the structure, and then consecutively I write down some important example sentences regarding to that one structure or the vocabulary, and I tend to write more than what is given already in the textbook, so that मुझे बाद में ऐसा मतलब प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो ऑलरेडी ग्रामर पॉइंट्स दिए होते हैं. आई जस्ट राइट सम मोर from ChatGPT and stuff, and as I said, उसी के साथ साथ I make sticky notes so that मुझे then and there itself differentiation समझ आ जाए. Once I was done with the first grammar part, I moved on to the second and third one. हर chapter में total 5 grammar pointers होते हैं. First 3 are in the first half of the chapter, and then the next 2, that is 4th and 5th one, that is in the second half of the chapter. So once I was done with the first half of grammar point, I had to go and pick up my sister. तो yeah, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें बंद वगैरह कर दी, एंड देन आई वेंट टू पिक अप माई सिस्टर, and while coming back it was actually raining heavily, and there we found a cat, like a stray cat. She was pregnant with babies and she was so एकदम प्यारी सी थी. हमने उसे एक ही बार बुलाया एंड वो आ भी गई हमारे पास, एंड इट वॉज़ रियली वेरी फन टू बी विथ हर. बट या उस टाइम पर मेरे पास कुछ खाने को था नहीं, सो आई हैड टू लीव हर एकदम जल्दी से, या फिर वो मेरे पीछे पीछे आ जाती. तो या मैं नीचे थी एंड आई वॉज प्लेइंग विथ हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एक्चुअली माई सिस्टर वेंट अप, बट मुझे बहुत मज़े आ रहे थे उसके साथ खेलने में, तो मैं थोड़ी देर नीचे ही बैठ गई थी. एंड उसके बाद आई वेंट बैक, फिर मैंने थोड़े से स्नैक्स वगैरह खाए, एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग वंस अगेन. So since my revision was done, I started with the very first text, and right now I am trying to read more, read aloud more, because जब मैं ऐसे ही मन में रीड करती हूँ तभी आई टेंड टू रीड वेरी इजीली एंड क्विकली, बट देन व्हेन आई स्पीक एंड रीड मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम फम्बलिंग विद अ फ्यू वर्ड्स. तो या आई रियली नीड टू डू समथिंग विद दैट. सो नाउअडेज आई रीड अलाउड एंड देन आई राइट डाउन. तो वैसे करते करते आई कम्प्लीटेड द फर्स्ट 3, एंड जब मैं इसे बंद करने वाली थी मेरे टाइमर को, आई रियलाइज मैंने इसे स्टार्ट ही नहीं किया था. सो या टेक्निकली मैंने बराबर 1 घंटा पढ़ाई की, एंड 1 घंटे में मेरे फर्स्ट 3 टेक्स्ट आर ओवर. नाउ आई विल टेक अ ब्रेक, एंड 5 o'clock को, अभी बज रहे हैं 4:35, मैं 5 o'clock को वापस बैठूँगी पढ़ने के लिए, एंड आई स्टार्ट विद द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर. सो या अभी मेरे दोनों डिवाइसेस में चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है. आई विल कीप दिस थिंग्स ऑन चार्ज, आई विल टेक अ ब्रेक, एंड आई विल मीट यू गाइस आफ्टर दैट. बाय बाय. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर डायरेक्टली मैंने थोड़ा सा रिविजन किया, एंड फिर उसके बाद मैंने ग्रामर से स्टार्ट किया. हियर आई वाज डूइंग द 4th वन, एंड यहाँ पर ये वाला मुझे थोड़ा सा इजी लगा. देयर वाज लाइक नथिंग वेरी डिफिकल्ट इन दिस पार्ट. तो 4th वाला पॉइंट तो जल्दी हो गया, एंड देन आई वेंट ऑन टू द 5th वन. 5th वन वॉज रियली वेरी कन्फ्यूजिंग. इट वॉज नॉट अ स्ट्रक्चर बट इट वॉज अ वर्ड. लाइट चली जा चुकी है, मेरे टैब में भी चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है, एंड नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड बिकॉज आई नीड टू यूज़ माई फ़ोन, एंड आई वॉज डूइंग दिस
मैं हूँ फिफ्थ वाले ग्रामर पॉइंट में. आई वॉज जस्ट मेकिंग सम डिफ्रेंसिएशन वाले नोट्स एंड उसी टाइम पर लाइट चली गई. नाउ आई विल कंप्लीट दिस पार्ट एंड देखते हैं अगर लाइट आती है तो आई विल रिकॉर्ड या फिर यू हैव टू वेट. सो आई विल मीट यू गाइस आफ्टर दैट. बाय बाय एवरीवन. सो मेरा जो फोर्थ एंड फिफ्थ वाला जो टेक्स्ट बाकी था उसमें से मैंने वोकेबलरी तो मैंने स्कीम थ्रू कर ली है एंड ग्रामर पार्ट इज़ ऑल्सो डन. एंड मैंने लाइक 7 o'clock को अपनी पढ़ाई बंद की एंड राइट नाउ आई मेड सम मैगी. आई एम हैविंग मैगी एंड अभी हो रहे हैं 7:40 एंड अभी 8 बजे मैं वापस बैठूंगी पढ़ने के लिए. आई एम थिंकिंग वेदर टू कंटिन्यू फोर्थ एंड फिफ्थ वाला टेक्स्ट ख़त्म कर दूँ या फिर टू स्टार्ट विथ मैथ्स. बट मोस्ट प्रॉब्ली आई डू चाइनीज़ ओनली कंटिन्यू विथ दैट बिकॉज आज मुझे एनी हाउ वो चैप्टर ख़त्म करना है. सो या आई मीट यू गाइस आफ्टर दैट. बाय. एज आई सेड मुझे जब मैथ करना होता है तभी आई नीड माई फ़ोन एज़ वेल क्योंकि वो वाला ऐप मेरे फ़ोन में है ना कि मेरे टैब में. आई हैव टू डाउनलोड दैट ऐप ऑन माई टैब एज़ वेल. सो आई फर्स्ट थॉट कि मैं पहले चाइनीज़ ख़त्म ही कर देती हूँ बिकॉज देर इज़ नथिंग मच लेफ्ट. बस लास्ट के 2 टेक्स्ट बाकी हैं एंड सिंस मेरी वोकेबलरी ऑलरेडी हो चुकी थी तो मुझे एज सच इतनी तकलीफ़ नहीं हुई. सो या मेरा फोर्थ वाला पार्ट वॉज डन एंड दिस टाइम आई वॉज राइटिंग सम एक्स्ट्रा जो सेंटेंसेस होते हैं रिगार्डिंग द vocabularies. I also wrote that because इस वाले पार्ट में थोड़े वोकेबलरीज देयर वर लाइक अ फ्यू जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे सेंटेंस में डालूँ कैसे. इसलिए आई वॉज राइटिंग सेंटेंसेस फॉर दोज वोकेबलरीज एज वेल. तो फोर्थ वाले में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई बट देन फिफ्थ वन वॉज ईजी. फिफ्थ वन वाले में मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई एंड आई कम्प्लीटेड बोथ फोर्थ एंड फिफ्थ वेरी ईजीली. एंड इसके बाद मैंने मैथ्स भी किया. मैंने मॉक पेपर सॉल्व किया. मॉक पेपर एज सच मॉक पेपर सॉल्व नहीं किया मैंने. टॉपिक वाइज बस प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए थे विच आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड बिकॉज एज सेड मेरे फ़ोन में वो ऐप है ना कि मेरे टैब में. तो येस विद दिस आई स्टडीड फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 hours today and I'm really very happy. I'll meet you guys in the next vlog. Take care and bye bye.